Okay, so we'll continue our last topic. Okay, so that is the harmonic analysis, and today we'll discuss some MCQs, some theory questions, so that you will get the clear-cut idea about this topic. Okay. All possible MCQs I will cover in today's lecture only. Yeah. So our topic is harmonic analysis. Okay, and what is mean by harmonic analysis? Yes, मैंने आपको कल के लेक्चर में बोला था. What is the harmonic analysis? What is the harmonic analysis? Huh? How you have to remember this topic? What is harmonic analysis? क्या कर रहे हो आप यहाँ पे इस टॉपिक में, अंडर दिस टॉपिक? Yes, here we find Fourier series, but using what? Using what? Using what? Here we find Fourier series using which approach? Which approach? Numerical approach. ठीक है. Using numerical methods or numerical approach you can say. ठीक है. So as we all know that, okay, what is the formula for Fourier series? F of x is equal to, है ना, a naught by 2 plus summation n runs from 1 to infinity, then an cos n pi x by L plus bn sin n pi x by L. This is the formula for Fourier series. ठीक है. But as we know that as our approach is numerical approach, so we can't directly calculate this an, है ना, nth फॉर एनी जनरल n के लिए कैलकुलेट होगा नहीं. न्यूमेरिकल अप्रोच कभी ऐसा नहीं होता. न्यूमेरिकल अप्रोच में आपको 1 by 1 सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ती, लाइक से a1, a2, a3 एंड सो ऑन. Again we cannot directly calculate bn. Okay, so here step by step we'll calculate this summation part. Okay, so just for that purpose, if I split this summation, means if I put n equal to 1, then here you will get a1 cos n means pi x upon L, and b1 sin pi x upon L. Correct? If I put n equal to 1, again if I put n equal to 2, I will get here a2 cos 2 pi x upon L plus b2 sin 2 pi x upon L, and so on. Okay, you can continue this. Okay, so this first term is called as, yes, what is this first term? Let me check it. First harmonic. First harmonic, very good. Okay, so that first term is called as the first harmonic. Okay, so this term is actually called as the first harmonic. Okay, and this term is actually called as the second harmonic. This is called as second harmonic. Okay, this is the first part. Okay, after this I also explain all the formulas for, like say, all the formulas to calculate these Fourier coefficients. Okay, and that you can directly remember from this series itself, right? Na? So what is formula for a naught? So now let me write the formulas for Fourier coefficient. Fourier coefficients. Yes. So can anyone tell me what is formula for a naught? Yes, a naught का formula क्या है? A naught is what? 2 by Integration of f of x. Okay, multiply by summation of yi, where this I runs over 1 to जो भी जितने भी इंटरवल्स आपको गिवन है, okay, उस अकॉर्डिंग आपको ये रन करना होगा. ठीक है, एंड वेयर दिस m is the number of intervals, number of distinct intervals, sorry, distinct observations you can say, number of distinct observations. एक्चुअली इसके डेफिनेशन यम का एक्चुअल मीनिंग क्या है? नंबर ऑफ सब इंटरवल्स. सब इंटरवल में आपको डिवाइड करना पड़ता है, बट वो सब इंटरवल के लैंग्वेज में अगर मैं आपको देता तो आपको थोड़ा बहुत डिफिकल्टी आ जाएगी. सो इट्स बेटर टू रिमेंबर दैट एम इज नथिंग बट द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि आपको पता है कि ये सारे पीरियोडिक फंक्शन के लिए हो रहा है, तो कुछ स्टेप के बाद रिपीटेशन आपका स्टार्ट होने वाला है ना. सो जितने डिस्टिंक्ट वैल्यूज है दैट बिकम यूर एम. एंड नेक्स्ट विल राइट फ्यू फॉर्मुलेज हियर. व्हाट इज a1? a1 का फॉर्मूला क्या है? दिस फैक्टर इज सेम फॉर ऑल फंक्शंस. सो 2 by n, व्हाट इज अंडर द समेशन? यस, एनीवन? Y cos
pi x y l. वाई आई cos pi xi upon l, and in a similar way you can remember the value of b1 also, which is also 2 by m multiply by summation y I, बस cos की जगह पे sin ही आने वाला है, pi xi upon n l, and in a similar way you can write formula for a3. इतना enough है, इसके आगे कुछ नहीं आने वाला, sorry a2, that is 2 by m multiply by summation y I cos, यहाँ पे क्या आने वाला है 2 pi xi upon l, and your b2 is equal to 2 by m summation y I sin 2 pi xi upon l. ओके, तो ये हमने आपको कल के लेक्चर में एक्सप्लेन किया था. नाउ विल टेक सम एग्जांपल्स ऑन दिस एंड देन विल सी दिस प्रूफ्स. ओके, सो दिस आर द एमसीक्यूज. लेट मी टेक वन एग्जांपल. कौन सा कर लेते हैं, या कल का ही कंटिन्यू करना है क्या? ओके, आई विल टेक अ न्यू एग्जांपल व्हिच इज नॉट इट सॉल्व. ओके, ये कर लेते हैं. ऑब्टेन या सो नाउ लेट अस सॉल्व दिस. तो मैं कुछ पेजेस ऐड कर लेता हूँ. अभी मैं आपको एक अप्रोच यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, उसी अप्रोच से आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. ठीक है, लेट मी डिलीट दिस. ये कौन सा डिग्री का नहीं है ना, चलो. Now let's discuss this. Okay, so obtain first two coefficients in the Fourier cosine series. Okay, ये अभी के लिए मैं इसको चेंज कर लेता हूँ. No, it's better to take other example. ये हमें आगे यूज करना है. चलो इनके ले लेते हैं. ये तो किया है हमने कल, so I don't want to take this. ये भी हाफ रेंज का है शायद, साइन का है. ओके, हाँ, ये फर्स्ट किया था ना हमने, ये हुआ था ना, कौन सा लिया था हमने? आई थिंक whether we have taken this, नो ना? नहीं सर. ओके, ठीक है. मैं अपने लैंग्वेज से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आई डोंट नीड दिस सॉल्यूशन. Yeah, so we'll now solve this. Okay, so क्या क्वेश्चन है? The following table gives the variation of periodic current over a period. Okay, this is the data. Okay, you can treat this as your x, you can treat this as your y, है ना? Show by practical harmonic analysis that there is a direct current of 0.75 ampere in the variable current and obtain the amplitude of first harmonic. Okay, okay, तो ये बाद में देखते हैं. पहले तो आपको क्या करना है यहाँ पे. Again I want a simple example initially. डायरेक्टली इतना डिफिकल्ट लेने में भी क्या, ये कल किया था हमने, या तो इसको कंटिन्यू करें, या यू वांट मी टू टेक अ न्यू एग्जांपल? तो फिर मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ. कैन वी कंटिन्यू दिस अगेन? Yes, sir. हाँ, क्योंकि बस एक्सप्लेन ही करनी है मेथड, बाकी कुछ नहीं है. एडिट करने में टाइम जा रहा है. या नाउ लेट मी जस्ट ऐड फ्यू मोर स्लाइड. ओके, नाउ डन. अभी यहाँ पे मैं आपको आई विल टेक थ्री थ्योरी एग्जांपल्स, जिसमें सारे वैरायटी आपकी कवर हो जाएगी. इस टॉपिक में आपको बस दो ही चीज़ें आने वाली. एक तो डायरेक्टली C2C+12 इंटरवल के ऊपर का क्वेश्चन. ओके, दैट इज द फर्स्ट वैरायटी. एंड सेकंड हाफ रेंज कोसाइन एंड हाफ रेंज साइन के क्वेश्चन आने वाले. मे बी वहाँ पे हाफ रेंज वर्ड होगा नहीं, तो अगर ये भी वर्ड आता है, साइन सीरीज कैलकुलेट करो और कोसाइन सीरीज कैलकुलेट करो, इसका मतलब वो क्या, हाफ रेंज का क्वेश्चन है. ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑन हाफ रेंज. तो उस केस में ऑब्वियसली आपकी जो इंटरवल होगी वो 0 to L ही होगी, हाफ इंटरवल ही होगी. यही दो टाइप के क्वेश्चन है. तो आई विल टेक वन क्वेश्चन ऑन दिस, आई विल टेक वन क्वेश्चन ऑन साइन, आई विल टेक वन क्वेश्चन ऑन कोसाइन. दैट इज इनफ. इसके बाद कुछ नहीं, बस वैल्यू चेंज होगी ना. अब ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो आप 1 सॉल्व करो, 10 सॉल्व करो, 100 सॉल्व करो, एट द एंड
मतलब आपका नॉलेज उतना ही रहेगा, उसमें कुछ ज़्यादा वैरायटी भी आने के चांसेस नहीं है। ओके, सो लेट मी टेक द फर्स्ट एग्जांपल ऑन दिस C2C प्लस ट्वेल्व इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ये नहीं बोला कि साइन सीरीज कैलकुलेट करो, कोसाइन सीरीज कैलकुलेट करो। ओके, सो लेट मी रीड दिस फॉर यू। ऑब्टेन द कांस्टेंट टर्म मींस ए नॉट, ये थोड़ा बहुत मैंने एक्सप्लेन किया लास्ट लेक्चर में, एंड द कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट कोसाइन एंड साइन टर्म्स। कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट कोसाइन एंड साइन टर्म्स मींस व्हाट कोसाइन का कोएफिशिएंट, फर्स्ट कोएफिशिएंट इज कोसाइन का a1 कोसाइन के लिए a1 एंड साइन के लिए b1, है ना। तो ये आपको कैलकुलेट करना है, एंड आल्सो कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक। सो लेट मी गिव यू डेफिनेशन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक। सो एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक इज व्हाट, इट इज डिफाइंड एज, सो फर्स्ट हार्मोनिक में कौन से टर्म्स आते हैं, a1 एंड b1, है ना, एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक इज a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक। ओके, सो इन solution first of all we need to calculate the value of m. Okay, so what is m? The number of distinct observations, ठीक है। so you can see here first value is 9, next is 18, next is 24, 28, 26 and 20. Okay, all these values are distinct. Okay, but since this given function is a periodic function, so at x is equal to 6, okay, at x is equal to 6, this function start repeating its values. Means what is the value for x is equal to 6? यहाँ पे क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए, ठीक है। Similarly for x is equal to 6 7, you must get here 18 like this, as this function is periodic function, तो ऐसे वो repetition start होगा। Okay, so 6 वैल्यू से एक्चुअली रिपीटिशन आपका स्टार्ट हो रहा है, इस वैल्यू से आपका रिपीटिशन स्टार्ट हो रहा है। तो ओके, सो व्हाट इज योर इंटरवल, इंटरवल क्या आपकी यहाँ पे 0 to 6, हाँ करेक्ट, फर्स्ट वैल्यू 0, x के वैल्यूज लेने हैं आप फर्स्ट कॉलम के, फर्स्ट वैल्यू 0, एंड रिपीटिशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो देखना है, 6 से रिपीटिशन स्टार्ट हो रहा है, सो दिस बिकम योर लास्ट पॉइंट। एंड हाउ मेनी डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशंस आर देयर, तो 1 2 3 4 5 6, सो टोटल देयर आर 6 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशंस। ये पहले आपको कैलकुलेट करके रखना है कि यम की वैल्यू क्या है, इंटरवल क्या। नाउ अभी आपको क्या देखना है कि इस क्वेश्चन में उन्होंने कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया कि आपको यहाँ पे साइन सीरीज कैलकुलेट करने की कोसाइन सीरीज कैलकुलेट करनी है। ओके, मैंने आपको पहले क्लियर किया, इसमें दो ही वैरायटी है, एक तो डायरेक्टली क्वेश्चन में आएगा कि हाफ रेंज कोसाइन सीरीज कैलकुलेट करो या हाफ रेंज साइन सीरीज कैलकुलेट करो। इन दैट केस यू हैव टू एज्यूम योर इंटरवल टू बी हाफ इंटरवल, दैट इज 0 to L इंटरवल, एंड अदरवाइज इन ऑल अदर क्वेश्चंस यू हैव टू कंसीडर योर इंटरवल टू बी C2C plus 2L। ओके, सो हियर तो आप सो इन दिस क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहीं पे उन्होंने ये नहीं बोला कि साइन सीरीज कैलकुलेट करो या कोसाइन सीरीज कैलकुलेट करो, इट मींस डायरेक्टली यू हैव टू कंपेयर दिस इंटरवल विद C2C plus 2L। ओके, समझ में आ रहा है क्यों कंपेयर कर रहा हूँ मैं, ओनली इन केस ऑफ साइन सीरीज एंड कोसाइन सीरीज यू हैव टू कंपेयर विद 0 to L, क्योंकि वो हाफ रेंज का क्वेश्चन होता है। बाकी सारे केसेस में आपको C2C plus 2L से ही कंपेयर करना है। हार्मोनिक एनालिसिस में -L to L का पार्ट है ही नहीं, दैट पार्ट इज नॉट देयर। ओके, क्योंकि आपको पता है -L to L के लिए यू नीड टू चेक वेदर इट इज इवन और वेदर इट इज ऑड। अभी यहाँ पे फंक्शन ही नहीं है, विदाउट फंक्शन हाउ यू कैन चेक वेदर दैट गिवन फंक्शन इज इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन, दैट इज द प्रॉब्लम। इसलिए वो -L to L का पार्ट इसमें है ही नहीं। नाउ डायरेक्टली कंपेयर विद द C2C plus 2L इंटरवल, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ L। सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज L? C तो 0 होगा, क्या आने वाला है 3, ठीक है, तो यह भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो योर L इज इक्वल टू 3, दैट ओके, ये हो गया। तो हम मैंने पहले आपको यम कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशंस, फिर आपको इंटरवल आइडेंटिफाई करनी है, क्योंकि इंटरवल से आपको L मिलने वाला है। इसके बाद आपको जनरल फॉर्मूला लिखना है। अभी आपको क्वेश्चन से समझ में आ रहा है कि आपको A1 B1 तक कैलकुलेशन करने मीन्स व्हाट, आपको फर्स्ट हार्मोनिक तक लिखना है ना। सो द फोरियर सीरीज, Fourier series up to फर्स्ट हार्मोनिक, मैं यही पीपीटी शेयर करने वाला हूँ। तो आप अप्रोच देखो, एंड दिस इज द सिंपल लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में आपको दे रहा हूँ ना, इससे सिंपल आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। सो नो नीड टू रेफर दिस पीपीटी सोल्यूशन ऑल्सो, आप इसी लैंग्वेज से याद रखो। सो जस्ट ओके, सो कंसिडर द फोरियर सीरीज अप टू फर्स्ट हार्मोनिक। सो व्हाट इज दैट सीरीज, f of x is equal to a0 by 2। यस, कैन यू टेल मी दिस नेक्स्ट टर्म, फर्स्ट हार्मोनिक मतलब n इक्वल टू 1 पुट करना है, A1 cos, हाँ, A1 cos pi x upon L 3, plus B1 sin pi x upon
L. Okay, now just put the value of L. जो जो चीज़ें आपको पता है वो सारे यहाँ पे पुट करो. So that gives me f of x is equal to a naught by 2 plus a1 cos. So your L is 3. So pi x by 3 plus b1 sin pi x by 3. ये स्टेप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस स्टेप के बाद आपको डायरेक्टली फॉर्मूले समझ में आते हैं. सो दिस इज योर मेन स्टेप, कॉल इट एज इक्वेशन 1. Now you have to write the formulas for a naught, correct? A naught, a1 and p1. So I will write here in this corner. अभी बोलो आप a naught का फॉर्मूला क्या होगा? ये तो फिक्स रहता है सारे एग्जाम्पल में. यस, 2 by m मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ वाई आई, मतलब y की एडिशन करनी है. ओके, व्हाट इज a1? फॉर्मूला फॉर a1 2 by m summation of y 2 by वाई आई. यस, क्या आने वाला है? cos nx by 3. cos pi x by 3. ओके, मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ क्योंकि वो बैठ नहीं रहा है. सो a1 इज इक्वल टू 2 by m मल्टीप्लाई बाय समेशन वाई आई cos pi xi अपॉन xi 3. ठीक है, एंड सिमिलरली यू कैन राइट डाउन b1 विच इज इक्वल टू 2 by m मल्टीप्लाई बाय समेशन वाई आई साइन पाई एक्स आई बाय 3. इनका यूज आप, ये आपके फाइनल फॉर्मूलेज है, ठीक है, और इनका यूज करके आपको समझ में आने वाला है कि x आपके पास अभी ऑलरेडी 2 कॉलम है, x एक कॉलम है, y एक कॉलम है. अभी आपको नेक्स्ट कॉलम क्या ऐड करना होगा? y कॉलम से आपको a नॉट की वैल्यू मिल जाती है ना, y कॉलम से आपको a नॉट मिल जाएगा. बट a1 b1 कैलकुलेट करने के लिए आपको ये 2 कॉलम ऐड करने होंगे. कौन से 2 कॉलम? वन इज दिस वाई आई कॉस पाई एक्स बाय 3. ये एक कॉलम आपको ऐड करना होगा, वहां से आपको a1 मिल जाएगा. एंड एक कॉलम आपको ऐड करना होगा वाई आई साइन पाई एक्स बाय 3. इन दोनों कॉलम से आपको a1 एंड b1 मिलने वाला है. ओके, सो नाउ विल डू दैट पार्ट. या सो इन नेक्स्ट स्टेप, ओके, नाउ आप भी मेरे साथ ये ड्रॉ करो. ओके, सो फर्स्ट कॉलम इज व्हाट? फर्स्ट कॉलम इज x. फर्स्ट कॉलम इज x, नेक्स्ट कॉलम इज y. ठीक है, अभी मुझे ये वैल्यूज कॉपी करने होंगे वहाँ से. जस्ट 1 मिनट. मैं क्या करता हूँ, ये टेबल ले लेता हूँ. एक क्वेश्चन में बस एफर्ट्स लेना, बाकी चीज़ें समझ में आ गई. आई विल पुट हियर और फिर मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ. ओके, ठीक है. हाँ, एंड फिर ये वैल्यूज आप कॉपी करो यहाँ पे. तो x की वैल्यू क्या है? पहले 0, देन 1, then 2, then 3, then 4, then 5. y की वैल्यू क्या है? फर्स्ट इज 9, नेक्स्ट इज 18, नेक्स्ट इज 24, नेक्स्ट इज 28, नेक्स्ट इज 26, नेक्स्ट इज 20. प्लीज करेक्ट मी इफ आई रॉन्ग. ये 2 कॉलम तो आपको गिवन थे, ठीक है. बट अगर आप वो फॉर्मूला देखते हो प्रीवियस स्लाइड में, ठीक है, व्हाट इज दैट फॉर्मूला? a1 का फॉर्मूला क्या है? 2 by m समेशन वाई आई कॉस पाई एक्स बाय 3. ठीक है, तो a1 कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पे कौन सा कॉलम ऐड करना होगा? a1 कैलकुलेट करने के लिए आपको कौन सा कॉलम ऐड करना होगा? बोलो. वाई आई कॉस एक्स आई बाय 3, क्योंकि उसका जो समेशन के अंदर आता है वही आपको यहाँ पे ऐड करना है. एंड यहाँ से आपको मिलने वाला है, ओके, लेट मी टेक अनदर कलर तो आपको दिखाई देगा. यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है? a1. यहाँ से क्या मिलने वाला है? a नॉट. एंड नाउ वी हैव टू कंसीडर कॉलम फॉर b1. एंड b1 कैलकुलेट करने के लिए b1 का जो फॉर्मूला था वहाँ से आपको वो वैल्यू समझ में आएगी. सो दैट विल बी वाई आई साइन पाई एक्स आई बाय 3. यही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है. एंड नाउ जस्ट लेट मी डिलीट दिस. हो गया. इसके बाद तो ट्रिवियल जॉब है. नाउ जस्ट कंप्लीट दिस कैलकुलेशन. ठीक है, अभी आप करो ये कैलकुलेशन और मुझे 1 by 1 बोलो. डू दिस कैलकुलेशन. अभी इसको कैसे करना मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. हाउ यू परफॉर्म दिस कैलकुलेशन. आप कैल्सी में वो स्टोर कर सकते हो ये वैल्यूज. सो दैट आई विल शो यू टुडे, दोज हू डोंट नो. अभी ये मैंने किया है डाउनलोड. हाँ, यही सेम कैलकुलेटर आपके पास? यस, यही है ना?
Yes. Yes, sir. ओके नाउ इन दिस कैलकुलेटर ओके पहले आपको ये इंश्योर करना है कि आप ये सारा कैलकुलेशन कौन से मोड में कर रहे हो, ठीक है। तो आप देखो ये y के वैल्यूज आपको पता है रियल नंबर्स वैल्यूज है। डिग्री के क्वेश्चन में स्पेशली दे हैव टू मेंशन कि डू दिस कैलकुलेशन इन डिग्री, वहाँ पे मेंशन होता है, बट रेडियन के केस में वहाँ पे मेंशन नहीं होगा। तो आपको वो डिफरेंस इजीली समझ में आएगा कि कहाँ पे डिग्री में जाना है, कहाँ पे रेडियन में जाना है, ठीक है। तो वो कैसे पहले चेंज करना है वो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, दोज हू डोंट नो। अभी ये बेसिक चीज़ आपको क्विकली लर्न करनी है। तो आई थिंक कहाँ पे वो शिफ्ट एंड मोड ना, अभी मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ। हाँ, सो इट इज़ इन शिफ्ट एंड मोड सेटअप में एक्चुअली सेटअप येलो में, तो आपको पहले शिफ्ट प्रेस करना होगा और यहाँ पे सेकंड इसमें एंगल यूनिट आ रहा है, ठीक है। इज इट विजिबल प्रॉपर? विजिबल है ना? Yes, sir. ओके, सो नाउ प्रेस 2 एंड हियर यू कैन सी ऑल थ्री दिस मोड, बट हियर यू वांट टू परफॉर्म ऑरियल कैलकुलेशन इन रेडियन मोड, देन प्रेस 2 एंड स्क्रीन पे R दिखाई देगा। इसका मतलब अभी आपका कैलकुलेशन रेडियन मोड में होने वाला है, ठीक है। एंड नाउ तर ते ऑप्शन दिसते का? यस ऑप्शनचं जर बटन दाबलं ना तरी पण ते येते एक अँगल युनिट वाला तो. ओके हाँ ऑप्शन में तो डायरेक्टली दिया है उन्होंने। ओके गुड, ठीक है। मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, सो मुझे इतना पता नहीं, बट मैं उसी कैलसी से सिमिलर जा रहा हूँ, ठीक है। सो ऑप्शन में आप देखो डायरेक्टली आ जाता है ना एंगल यूनिट, तो दैट्स अ क्विक या। नेक्स्ट इज व्हाट नाउ, अभी आपको ये टर्म एज इट इज लेना है, एज इट इज कैलसी में पुट करना है। तो y चाहिए, y वेरिएबल है, y वेरिएबल यहाँ पे SD बटन पे आ रहा है। सो अल्फा y, then next is I want cos, then cos I want a by b button, pi shift pi, yeah, this pi I want x, this x, yeah, and then in denominator I want 3, ठीक है। complete this bracket now, ओके। तो जैसे मुझे यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है एज इट इज, मैंने यहाँ पे टाइप किया है। नाउ प्रेस कैल्क बटन, ठीक है, कैल्क बटन। प्रेस कैल्क, वहाँ पे आ रहा है ये क्या है, ये y की प्रीवियस वैल्यू है, ठीक है। तो इस कैल्सी में y की प्रीवियस वैल्यू 0 है, आपकी कैल्सी में अलग अलग होगी। इट डिपेंड ऑन कि आपने लास्ट टाइम कौन सा कैलकुलेशन परफॉर्म किया है, कुछ मेमोरी रहती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये y की प्रीवियस वैल्यू मुझे, सो हियर राइट नाउ माय न्यू वैल्यू इज 9, डोंट कंफ्यूज विद द वेरिएबल x एंड y। सो माय न्यू वैल्यू इज 9, सो लेट मी जस्ट पुट 9, प्रेस इक्वल। x की प्रीवियस वैल्यू 0 थी, बट यहाँ पे भी x की वैल्यू 0 ही है, सो आई विल कीप दैट वैल्यू एज इट इज एंड हियर आई कैलकुलेट। सो द फर्स्ट वैल्यू इज व्हाट 9 एंड देन आई हैव टू जस्ट राइट हियर, ठीक है। सो दैट गिव्स मी 9, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आप को कैलकुलेट करना है और मुझे क्विकली बोलना है। हाँ, अगेन प्रेस इक्वल, इसको फिर से कंटिन्यू करना है। अभी y की वैल्यू क्या है, 18 है, x की वैल्यू क्या है, 1 है, प्रेस इक्वल, ओके। अगेन इट गिव्स यू 9, करेक्ट चल रहा है ना सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू इज अगेन प्रेस इक्वल, y की वैल्यू क्या है अभी 24, x की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। योर आंसर इज -12, सो लेट मी राइट हियर -12। अभी नीचे क्या बोलो, एनीवन जिसने किया ये, आप सबको करना है यही तो -28, -28 देन -13 13 1 3 हाँ and then 10. 10 Yes. ओके ओके। सिमिलर यहाँ पे अभी ये करते समय आपको क्या करना होगा, यू हैव टू चेंज योर फॉर्मूला, है ना। तो यहाँ पे अभी एडिट होगा ना, हाँ मैं यही से एडिट करने वाला हूँ। आई वांट होगा कि नहीं अभी देखते, इंस्टेड ऑफ दिस नहीं हो रहा है, चलो। तो आप यू हैव टू अगेन पुट दिस फॉर्मूला एंड उसको उसमें अभी बस साइन लेना होगा एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट इन अ सिमिलर वे। तो आई थिंक आप वो कर लोगे, बोलो अभी। दिस वैल्यू इज 0, नेक्स्ट 15.59 15.59। हाँ, अभी एक और फंक्शन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, चलो आज टाइम है।
अभी कभी कभी आगे जब आप जाओगे ना, ओके, कैल्स में 4 डिजिट के भी आगे आपको आंसर मिल जाएगा, ओके, बट आपको पता है स्टैंडर्ड जो वे होता है, यू हैव टू कंसिडर द आंसर अप टू 4 डिजिट ही आपको आंसर कंसिडर करना है, ओके। बट ज़्यादातर स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है कि उनको वो अप्रोक्सीमेशन जल्दी जल्दी नहीं समझ में आता कि अभी 4 डिजिट में मुझे फिक्स करना है, तो आपको पता है कि अगर वो नंबर, इफ दैट नंबर इज ग्रेटर देन 5 देन आई हैव टू इंक्रीज दैट वैल्यू, इफ इट इज लेस देन 5 आई हैव टू कीप दैट वैल्यू एज इट इज, इफ इट इज 5 देन मुझे वो उसका प्रीवियस नंबर देखना होगा, ये सारी चीज़ें, सॉरी, इफ इट इज इक्वल टू 5 तो उस केस में भी इवर के केस में क्या करना है और के केस में क्या करना है, अब ये कुछ भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ओके। कैल्स में आप डायरेक्टली वैल्यू फिक्स कर सकते हो, मतलब जो भी आंसर आपको मिलेगा यू विल डायरेक्टली गेट दैट आंसर अप टू डिजिट 4, डिजिट 4 के आगे आपको आंसर मिलेगा ही नहीं, दैट यू कैन फिक्स। पता है सबको ये कैसे करना है? No, sir. No, sir. No, sir. फंक्शन इज आल्सो देयर, या ज्यादातर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में यूज होता है, क्योंकि हमेशा आपको कंसिडर जो मतलब डायरेक्टली कैल्स में जितना आंसर आ रहा है वही कॉपी पेस्ट करो, आपको वहाँ पे उसके आगे अप्रोक्सीमेट करने की जरूरत नहीं है। सो अगेन आई थिंक दैट फंक्शन इज इन शिफ्ट एंड मोड सेटअप। अभी मैं भी देख रहा हूँ आपके साथ, सो जस्ट लेट मी चेक डेसिमल मार्क। अभी इसमें नए नए ऑप्शन है, मैं देखता हूँ इसमें क्या है, लेट मी चेक। हाँ, नहीं ये नहीं, इसमें ही कहीं पे आप चेक करो एक बार, मैं भी देख रहा हूँ फिक्स का इसमें ऑप्शन है, इक्वेशन है, मल्टी लाइन क्यूआर कॉन्ट्रास्ट टेबल फ्रैक्शन रिजल्ट, लेट मी चेक दिस, नो, इसको बैक या देन नंबर फॉर्मेट, नहीं तो ये 3 और 4 में, हाँ इसमें नंबर फॉर्मेट में, आर यू विद मी और नॉट? Yes, sir. सो प्रेस 3 नाउ, ठीक है। यहाँ पे आप देखो फिक्स नॉर्मल, फिक्स एंड नॉर्मल। नॉर्मल में क्या होता है, जैसे अभी आपका कैसे आंसर शो कर रहा है, दैट इज इट मीन्स यू आर इन नॉर्मल मोड। फिक्स में जाते हो अगर आप, फिक्स में तो यहाँ पे वो पूछ रहा है, ओके, अप टू विच डिजिट यू वांट टू फिक्स, 0 to 9, ओके, हमें कहाँ तक फिक्स करना है, 4, तो प्रेस 4 हो गया। अभी आप कोई भी कैलकुलेशन करो, 23 अपॉन 56, दैट गिव्स यू आंसर अप टू डिजिट 4 ओनली। ये SD बटन पता है सबको, ये SD बटन मतलब वो डेसिमल पॉइंट पे आंसर शो करता है, ठीक है। ये होता है फ्रैक्शन, ये होता है डेसिमल, SD बटन, ओके। सो यू कैन सी दिस आंसर अप टू डिजिट 4 ओनली, ओके। कैसे, क्या समझ में आ रहा है? प्रेस शिफ्ट मोड, देन इन नंबर फॉर्मेट यू हैव टू प्रेस 1, एंड अगर आपको डिजिट 4 तक फिक्स करें तो 4 प्रेस करो, ओके। अगर आपको इस मोड से बाहर आना है तो कैसे आना है? शिफ्ट मोड, 3rd पे जाओ, नॉर्मल मोड है 3rd नंबर पे, प्रेस 3 एंड देन प्रेस 1 और 2, बट लेट मी प्रेस 1। अभी आप मोड से बाहर आ गए, आप फिर से कोई भी कैलकुलेशन करके देखो, नाउ यू विल गेट मोर डिजिट, ठीक है, यू विल गेट मोर डिजिट। चलो अभी इसमें है ही नहीं ज़्यादा, बट यू कैन चेक दिस, नाउ दिस कैलकुलेटर नॉट इन फिक्स मोड, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो इस टेबल में हार्मोनिक एनालिसिस में भी आप अपने डिजिट फिक्स करके रखो, तो वो अप्रोक्सीमेशन का इशू नहीं आएगा। सो लेट मी फिक्स नाउ 3rd 1, आई वॉन्ट अप टू डिजिट 4, ओके, एंड देन यू कैन परफॉर्म दिस कैलकुलेशन, ठीक है। अभी बोलो मुझे जल्दी, 2nd की वैल्यू क्या है? सेकंड इस पे 20.7. 20.78. 20.78, नेक्स्ट 0. 0, नेक्स्ट Minus 22.51. नेक्स्ट Minus 17.32. 3, 2, ठीक है। तो ये आपको पूरा कैलकुलेशन कंप्लीट करना है, और फिर लास्ट रो में एक और आपको रो ऐड करनी है, दैट रो इज नथिंग बट समेशन, ओके। हर एक की आपको समेशन कैलकुलेट करनी है। सो जस्ट टेल मी दिस समेशन, वाई नॉट की, वाई की समेशन बोलो क्या है? अभी आप सम करो इन सब की, बोलो समेशन क्या है? टेल मी दिस, दिस एंड दिस, ओके। कुछ स्टूडेंट 3rd का कैलकुलेट करो, कुछ स्टूडेंट 2nd का, कुछ स्टूडेंट 1st का। 125. Why, sir? 125, दिस वैल्यू इज 125, ओके। 2nd Minus 25. -25, 3rd 3rd थर्ड बोलो, यस
minus 3.46. माइनस 3.46, So my करेक्ट है? yes sir. ओके एंड नाउ इसके आगे तो अभी हो गया कैलकुलेशन, आपका टेबल ही मैंने। ओके नाउ कैलकुलेट ए नॉट का फॉर्मूला मैंने लिखा था 2/m समेशन ऑफ वाई आई, बट अभी आपने समेशन ऑफ वाई आई कैलकुलेट किया यहाँ पे विच इज 125 एंड m की वैल्यू 6 है, सो 2/6 इंटू 125, डू दिस कैलकुलेशन 2/6 इंटू दैट इज 1/3, ठीक है? सो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 125, व्हाट इज दैट? बोलो यस 41.67. ठीक है, मैंने 2 डिजिट तक ही अप्रोक्सीमेट किया है, बट यू कैन अप्रोक्सीमेट अप टू 4 डिजिट। नेक्स्ट इज a1 का भी फॉर्मूला क्या है 2/m, ओके ये फॉर्मूला इसका था समीशन ऑफ वाई आई कॉस पाई एक्स आई बाई 3, ओके दैट इज 2/6 मल्टीप्लाई बाय, ये वैल्यू आपने कैलकुलेट की है कॉस की, है ना? वो क्या है -25, so just multiply by -25 and tell me this now, 8.33. Minus 8.33. -8.33, ठीक है? and now b1 which is equal to 2/m summation of yi sin of pi xi by 3, so that gives me 2/6 into -3.46, and what is that? Minus 1.1. Minus 1.15. -1.15, correct? Yes sir. Okay, हो गया। and then finally you have to write down your Fourier series. So what is your Fourier series? That is f of x is equal to, correct, a0 by 2, but a0 is what 41.67 by 2 plus a1 की वैल्यू क्या है? a1 is -8.33 cos of what? pi x by 3, so pi x upon 3, correct, pi x upon 3 plus b1 की वैल्यू क्या है? -1.15 इंटू साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन 3, हो गया। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब इसके आगे कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। अभी आप एफ ऑफ एक्स किसी भी केस में कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कैलकुलेट एफ ऑफ 10, एक्स इक्वल टू 10 पुट करो, यू विल गेट दैट आंसर। कैलकुलेट एफ ऑफ 11, ओके एक्स इक्वल टू 11 पुट करो, यू विल गेट दैट आंसर। ओके, इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? ये हो गया फर्स्ट केस का एग्जांपल। कुछ डाउट्स है इसमें? क्लियर है सबको? कैन आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? Yes. ओके, नाउ आई विल टेक वन डिग्री क्वेश्चन। डिग्री का ले लेता हूँ मैं अभी, या बट अभी ये साइन में, बट लेट इट बी। देखो ये है क्या प्लेन, बट इट विल टेक टाइम, ठीक है, बट कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करके हम आगे जा सकते हैं। या हाँ, so using a tabulated values of x and y given in the table, determine the first harmonic of a Fourier series to represent the relation between x and y. Okay, अभी फर्स्ट हार्मोनिक उन्होंने वर्ड यूज किया, इट मीन्स व्हाट, कहाँ तक कैलकुलेशन करने हैं आपको? बोलो कहाँ तक कैलकुलेशन करने हैं? A1 B1. a1 b1, ठीक है, तो ये तो हो गया, a1 b1 तक आपको कैलकुलेशन करने हैं। दिस डाटा इज गिवन, ओके। हाँ, अभी देखते हैं, अभी हम अपने अप्रोच से ही जाने वाले, दो दिस सोल्यूशन इज देयर, ठीक है। पहले मैंने आपको बोला था कि कैलकुलेट यम, बोलो यम क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशंस कितने हैं यहाँ पे? 170 है ना फर्स्ट वैल्यू, 2 3 4 5 6 7, इक्वल नहीं है अभी, आप देखो यहाँ पे -70 है, 9 10 11 12, तो ये सारे, सो टोटल हाउ मेनी डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशंस आर देयर? 12, ठीक है। तो इसके आगे रिपीटेशन स्टार्ट होगा, इसके आगे मतलब कौन से वैल्यू के लिए रिपीटेशन स्टार्ट होगा? कौन से वैल्यू के लिए? 360 के लिए रिपीटेशन स्टार्ट होगा, दैट वैल्यू इज 70, ठीक है। सो व्हाट इज योर इंटरवल? व्हाट इज योर इंटरवल? इंटरवल क्या है? बोलो, व्हाट इज योर इंटरवल? 0 to 360. 0 to कहाँ से स्टार्ट होगा? 360 से स्टार्ट होगा, सो 0 to 360, हाँ, ओके। अभी आप यहाँ पे देखो, ये तो क्लियर होगा, यम कैलकुलेट करना है, फिर इंटरवल कैलकुलेट करनी है। नाउ यहाँ पे उन्होंने नहीं बोला कि साइन सीरीज एंड कोसाइन सीरीज कैलकुलेट करो, मतलब यू हैव टू कंपेयर दिस इंटरवल विद c to c plus 2l, सो दैट गिव्स मी l इज इक्वल टू व्हाट? 180, हाँ। अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये पूरा कैलकुलेशन कौन से इसमें हो रहा है? डिग्री में हो रहा है, Yes sir. हाँ, क्योंकि उन्होंने 30 60 ये सारे एंगल्स दिए ना,
तो ये डिग्री में हो रहा है, एक्चुअली यहाँ पे मेंशन होना चाहिए दिस एक्स इज इन डिग्री, ठीक है। तो ये पूरा कैलकुलेशन आपका डिग्री में हो रहा है, ओके। हाँ, तो आपको क्या करना होगा, इसके आगे टोटल कैलकुलेशन ही आपको डिग्री में लेके जाना होगा, ठीक है, तभी वो मैच करेगा, ठीक है। तो अभी बस आप ये याद रखो, यल की वैल्यू 180 है, एम की वैल्यू 12 है। नाउ आई विल शो यू हियर, ठीक है, डिग्री में क्या क्या चेंज होता है वो मुझे बस आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आपको तो समझ में आ रहा है कि आपको A1 B1 तक ही कैलकुलेशन करने, ठीक है। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज योर फोरियर सीरीज? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट? A0/2 प्लस A1 cos पाई एक्स बाय एल प्लस B1 साइन पाई एक्स बाय एल। बट अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये फॉर्मूला कौन से एंगल में, रेडियन में या डिग्री में, कौन से इसमें डिफाइन है ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला रेडियन में डिफाइन है, क्योंकि यहाँ पे पाई आ रहा है, पाई इज दी रेडियन वैल्यू। तो पहले मुझे इस फॉर्मूले को डिग्री में लिखना होगा, आपको समझ में आएगा चेंज, ओके। अगर मुझे इसको डिग्री में लिखना है तो क्या चेंज करना होगा? पाई को सर 180 पाई को 180 से रिप्लेस करना होगा। सो दैट गिव्स मी cos ऑफ 180 इंटू एक्स अपॉन एल, है ना, एंड प्लस B1 साइन ऑफ 180 इंटू एक्स अपॉन एल, ओके। तो डिग्री में करते समय सारी चीजें डिग्री में लेके आ जाओ, देन यू कैन परफॉर्म दैट कैलकुलेशन इन डिग्री, ठीक है। अभी आपको क्या पता है, योर एल इज 180, ये अभी आपने प्रीवियस कैलकुलेट किया है, योर एल इज 180। सो इफ आई पुट एल इक्वल टू 180 हियर, व्हाट इज माई एफ ऑफ एक्स? A0/2 प्लस A1 cos, बोलो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? इफ आई पुट L इक्वल टू 180 नाउ, X. cos x मिलेगा, 180 कैंसिल हो जाएगा, एंड प्लस B1 sin x। इस स्टेप में कुछ डाउट्स है? समझ में आ गया डिग्री में क्या चेंज किया मैंने? डिग्री में लेते समय, फॉर्मूला लेते समय ही मैंने डिग्री में लिया है, 180 कंसिडर किया यहाँ पे, ओके। कुछ स्टूडेंट ने प्रीवियस एग्जाम में क्या किया था, यहाँ पे पाई, ओके, पाई एक्स अपॉन 180। अभी ये कौन सा वैलिड स्टेटमेंट है? पाई की वैल्यू रेडियन में है ना, एल की वैल्यू डिग्री में, सो दिस इज टोटली रॉन्ग। इसका मतलब आपको कुछ भी बेसिक चीज़ें नहीं पता है, ठीक है। सो डोंट डू दैट मिस्टेक, इट्स अ बिग मिस्टेक, ठीक है। तो ये किया था लास्ट टाइम कुछ स्टूडेंट ने, पाई भी लिखा है नीचे, 180 भी लिखा है, उनको कैंसिल भी नहीं किया है, ठीक है। उन्होंने वैसे ही रख के पूरा कैलकुलेशन किया। इस इट मीन्स व्हाट, उन्होंने वहाँ पे क्या एज्यूम किया था, दैट 180 इज अ रियल नंबर, ठीक है। तो अभी स्टिल आई डोंट नो कि यहाँ पे उन्होंने किस फॉर्म में कैलकुलेशन किया, बट विल चेक, ठीक है। तो अभी के लिए मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 180 डिग्री है, ओके। यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद 180, कंसीडर 180 एज अ डिग्री, ओके। अभी आप मुझे बोलो A0 का फॉर्मूला क्या है? A0 का फॉर्मूला क्या है? यही पे लिख लेता हूँ, चलो, 2/m summation yi, ओके। तो ये होता है आपका x का कॉलम, लेट मी हाइड दिस, हाँ, ये होता है x का कॉलम, ये होता है y का कॉलम, यहाँ से आपको मिलने वाला है A0। चलो ये हो गया। नेक्स्ट मुझे A1 कैलकुलेट करना है। इनका अप्रोच अलग है, हम इस अप्रोच से नहीं जा रहे, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, ओके। दिस इज, ये मैं नहीं कैलकुलेट कर रहा हूँ, सो डोंट फॉलो दिस प्रोसेस, इट इंक्रीजेस योर कैलकुलेशन, इट विल नॉट रिड्यूसेस योर कैलकुलेशन, सो आई डोंट वांट दिस अप्रोच, ओके। हाँ, A1 का फॉर्मूला क्या आने वाला है? 2/m समेशन yi cos x। तो मुझे यहाँ पे क्या लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए यहाँ पे? sin x, सॉरी, हाँ, यहाँ पे अभी वेरिएबल थोड़े बहुत रॉन्ग है, तो यहाँ पे मुझे क्या लेना चाहिए? आई विल इरेज दिस एवरीथिंग। तो व्हाट इज माई दिस कॉलम? ये कॉलम क्या होगा मेरा? y cos x, है ना। y cos x अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ से मुझे A1 मिल जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट? B1 इज इक्वल टू 2/m समेशन yi sin x। तो यह sin xi होता है ये सब में, ठीक है, आप लिखो ना लिखो, इट डजंट मैटर। सो इस यहाँ पे मुझे करना होगा y sin x। नाउ डू दिस कैलकुलेशन फॉर मी। कैल्शियम में अभी डिग्री मोड लेना है, सो लेट मी डू इट। कुछ कैलकुलेशन शो करता हूँ, आप कंप्लीट करके आप मुझे फाइनल आंसर बोलो, आई विल गिव यू टाइम फॉर दिस। Yeah, so first we need to change this mode. I don't want to perform this calculation in radian mode, so quickly change that mode. I want in degree. चलो d आ गया। Now I have to set this formula. पहला formula क्या है? y cos x का है। So let me take y, then I want cos, then I want x, y cos x. Okay, bracket complete. Press calc button. ठीक है, तो first y की वैल्यू क्या है? 70 एंड x की वैल्यू क्या है? 0। ओके, तो आंसर क्या दे रहा है? 70। तो दिस इज माय 70।
ठीक है। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट इज y इज 886। ये y के वैल्यूज ये थे क्या? ओके ठीक है, इट्स अ लेंथी क्वेश्चन, लेट इट। x की वैल्यू क्या है? 30 इक्वल, ओके। अब ये 4 डिजिट तक की मुझे दे रहा है, ठीक है। सो 767 पॉइंट क्या था वो, नहीं देखा मैं, 767.2985 ऐसे आपको ये सारा कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है। सो कैन यू डू इट क्विकली? करो आप ये जल्दी से, डू इट क्विकली। 646.5। हाँ, अभी आप करो और मुझे लास्ट में बस इसकी समेशन बोलो, ओके। आप अपने हिसाब से रफ पेजेस में क्विकली करो एंड आई विल वेरीफाई ओनली विद दिस लास्ट समेशन, ठीक है। दैट इज बेटर। जो जल्दी बोलता है उसका कैलकुलेशन फास्ट है। बोलो, डू इट। आपको कैसे करना है? आप रफ पेजेस पे बस लिखते जाओ एंड जस्ट डू दैट समेशन, क्योंकि हमें बस यही तो चाहिए ना कैलकुलेट करने के लिए। 4 डिजिट तक करो, इट विल टेक टाइम बट करो, क्योंकि 4 डिजिट ही स्टैंडर्ड है। जल्दी फास्ट करो, इट हैव टू सेव आवर टाइम फॉर दिस कैलकुलेशन एंड टेल मी दैट लास्ट समेशन। उसके बाद ऐड भी करना है। एक काम करो, फ्यू स्टूडेंट्स कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद द नेक्स्ट। कुछ स्टूडेंट ये करते हैं, कुछ स्टूडेंट ये करो। बैच 1 प्लीज डू दिस फर्स्ट, बैच 2 प्लीज डू दिस सेकंड फॉर मी। बैच 1 से मुझे फर्स्ट का चाहिए, बैच 2 से मुझे सेकंड का चाहिए। ये आंसर लेंदी होगा कुछ तो, बट नेगेटिव नंबर्स भी आने वाले हैं ना, सो दैट भी। बोलो सम बोलो। Tell me some. रॉन्ग आने दो बट बोलो।
and then it's a calculation, you can correct it. Sir, y cos x 250.7076. 250 7076. Other student, please check it. Anyone, just give me confirmation. Yes sir, correct है. Correct है? Yes sir. Okay, so we can go with this. Okay, अभी सेकंड का आप करो, it will take time. So अभी a नॉट कैलकुलेट कर लेते हैं, ये भी सम करो. फर्स्ट y की सम करो. कैंसिल ही हो रहा है ये, सर 0 है ना? सारे कैंसिल ही हो रहे हैं क्या? हाँ सर. हाँ, अरे सो समीशन ऑफ y इज 0 नीचे का, तो इसका मतलब a नॉट की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज a नॉट? 2 बाय 0 मल्टीप्लाई बाय y विच इज 0 है ना. a नॉट है ही नहीं पिक्चर में, कांस्टेंट टर्म इज 0. ठीक है. एंड व्हाट इज a1 इज 2 बाय m मल्टीप्लाई बाय समीशन ऑफ y cos x. सो m इज 12 ना, m 12 है, मल्टीप्लाई बाय ये 250.7076 क्या आता है बोलिए. 1/6 इंटू दिस 250.7076. यस, व्हाट इज दैट? करेक्ट है आंसर, करेक्ट है ये. आप चेक करो, ये आ रहा है क्या सबका? दिस इज माई a1. इज दिस करेक्ट? Yes. Yes sir. ठीक है. एंड सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट b1. नाउ इट इज, मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, जिन्होंने किया है यू कैन कंटिन्यू एंड कंप्लीट दिस b1 कैलकुलेशन. ठीक है. डिग्री का समझ में आ गया? तो क्या चेंज है, बस आपको सारे कैलकुलेशन डिग्री में मोड में करने हैं. यहाँ पे ये पूरा कैलकुलेशन डिग्री मोड में आ गया, इतना ही चेंज है. और ये फॉर्मूला भी आपको डिग्री मोड में कन्वर्ट करना है. ठीक है. इज दिस क्लियर नाउ? अभी एक और प्रॉब्लम लेते हैं, देन वी स्टॉप. अभी वो आगे का ट्रिवियल है. I will extend for 2-3 minutes क्योंकि ये कंप्लीट करना होगा. I just want to take any one simple example on this. ठीक है. अभी कोई भी एक ले लेता हूँ मैं. So the turning moment T units of a crank shaft of a steam engine is given for a series values of crank angle theta in degree. Find the first 4 terms. Okay, क्वेश्चन अच्छे से देखते हैं, बाकी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं. फर्स्ट 4 टर्म्स इन अ सीरीज ऑफ साइन. इसका मतलब क्या है? उन्होंने क्या पूछा है? कौन सी सीरीज कैलकुलेट करनी है? कौन सी सीरीज कैलकुलेट करनी है? साइन सीरीज कैलकुलेट करनी है. और मैंने आपको पहले क्लियर किया कि अगर क्वेश्चन में आता है कि साइन सीरीज कैलकुलेट करो या कोसाइन सीरीज कैलकुलेट करो, उसका मतलब दैट क्वेश्चन इज ऑन हाफ रेंज साइन सीरीज. तो ये बेसिकली हाफ रेंज साइन सीरीज का क्वेश्चन है. एंड हाफ रेंज साइन सीरीज में आपके इंटरवल हमेशा क्या आने वाले? 0 to l. हाफ इंटरवल होगी. ठीक है. एंड नाउ अब इसके आगे देखते हैं. इसके आगे बाकी चीजें तो सिमिलर है. अभी हाफ रेंज साइन सीरीज में क्या क्या 0 होता है? क्या क्या 0 होता है? ए नॉट 0 होता है, करेक्ट. फिर क्या 0 आता है? ए एन भी 0 होता है. हाँ, तो फोरियर सीरीज क्या आती है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब इसको अभी क्या करो, जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पस यू कैन ट्रीट एज एक्स, यू कैन ट्रीट एज वाई. आप ऐसे भी जा सकते हो, नो नीड टू यूज दिस थीटा एंड टी वेरिएबल. आप लिखो पहले एक्स इज इक्वल टू थीटा, वाई इक्वल टू टी. हो गया फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व. ओके. सो एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होगा? ए नॉट 0 ही है, ए एन भी 0 है, तो क्या आएगा फॉर्मूला? समेशन, आप बोलो बी एन, बोलो बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल. बट उन्होंने क्या बोला है? उनको क्या चाहिए? फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ अ साइन सीरीज. मतलब व्हाट मींस व्हाट? फर्स्ट 4 ऑफ दिस सीरीज. हाँ, करेक्ट. फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज मींस व्हाट? यस, b1 sin pi x by l b1 sin pi x by l plus b2 sin 2 pi x by l pi x by l plus b3 sin pi x by l and plus b4 sin pi x by l. ठीक है. ये आपको कैलकुलेट करना है. फाइन वाले तो ये लट पाए. हाँ, वो आ जाएंगे, सॉरी वो आ जाएंगे 3 and 4. ठीक है. सो b1 sin,
B2 is 2 pi x, B3 is sin 3 pi x, B4 sin 4 pi x. ओके बट नाउ अभी इसमें यल कैलकुलेट करना होगा, तब जाके मुझे फॉर्मूले समझ में आएंगे। B1 का क्या आता है, B2 का फॉर्मूला क्या आएगा, B3 का क्या आएगा, B4 का क्या आएगा। अभी मुझे आप बोलो यल की वैल्यू क्या है, तो उसके लिए मुझे रिपीटेशन देखना होगा। ये फर्स्ट वैल्यू है, रिपीटेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सो दिस इज द एक्स्ट्रा कॉलम, है ना। सो व्हाट इज योर इंटरवल, इंटरवल क्या आपकी गिवन क्वेश्चन की 0 to 180, है ना। जहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट होगा वो पॉइंट आपको लेना है। अभी आपको इससे कंपेयर करना, तो यल की वैल्यू क्या होगी 180 होगी, क्योंकि हाफ रेंज कोसाइन का क्वेश्चन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पे आपने 90 किया, होल कैलकुलेशन इज रॉन्ग, ठीक है। यल इक्वल टू 180। अभी फिर से इसमें क्या करो, यल की जगह पे 180 डालो, और पाई को किससे रिप्लेस करना होगा, पाई को भी 180 से, क्योंकि डिग्री का क्वेश्चन। तो ये सारे आई थिंक कैंसिल हो जाएंगे, एम आई करेक्ट। पाई Yes, sir. कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि डिग्री में ये दोनों इक्वल है। तो आपके पास वैल्यूज क्या आ रहे हैं, वैल्यूज क्या आ रहे हैं, B1 sin हाँ B1 x plus B2 sin sin x प्लस B2 sin 2x प्लस B3 sin 3x एंड प्लस B4 sin 4x। तो कैन यू टेल मी फॉर्मूला फॉर B1, कुछ एक दो बोलो आप। 2/n समेशन ऑफ y sin x। तो मुझे पहला कॉलम क्या लेना होगा, y sin x का लेना होगा। ये तो है ही दो कॉलम, नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा y sin x का। B2 कैलकुलेट करने के लिए 2/m समेशन ऑफ y, क्या है B2 का sin 2x। तो सेकंड कॉलम क्या आने वाला है, y sin 2x ऐसे, है ना। तो ये होता है x, ये होता है y। पहला कॉलम ये रॉन्ग है, आपको इस अप्रोच से नहीं जाना है, y sin x। सेकंड कॉलम क्या आएगा, y sin 2x, y sin 3x, y sin 4x, एंड यहाँ से आपको क्या मिलेगा, B1, B2, B3, B4। कैन यू डू दिस, ये होगा आपसे। ये डाटा आपको चेंज करना है, दिस इज नॉट द करेक्ट डाटा, इसका कुछ यूज होगा नहीं अगर हमारे मेथड अलग है। ओके, कैन यू डू दिस, नॉट नाउ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लो एंड टेल मी द वैल्यूज इन नेक्स्ट लेक्चर। कैन यू डू दिस फॉर मी, कर लोगे आप ये। हाँ, यहाँ पे आप देखो मैंने लास्ट कॉलम डिलीट किया 180 की वैल्यू, क्योंकि वो ऑलरेडी कंसिडर की थी हमने। तो जो रिपीटेशन की वैल्यू है वो डिलीट करनी है, तो यहाँ पे 180 नहीं लेना है, या इट्स इंपॉर्टेंट पार्ट। ये उन्होंने दिया था क्वेश्चन में, बट ये एक्स्ट्रा कॉलम है, आई डोंट वांट दिस कॉलम, क्योंकि 180 से रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है, तो आई हैव टू डिलीट दैट कॉलम। मुझे 50 तक ही कंसिडर करना है। देखो आप यहाँ पे, हाँ, इट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, सो कैन यू डू दिस, कर सकते हो आप ये कैलकुलेशन आगे। ये PPT शेयर है आपसे ऑलरेडी, बोलो यस और नो, होगा? Yes, sir. ओके, ठीक है। सो हियर विल स्टॉप टुडे एंड विल कंटिन्यू दिस पार्ट इन नेक्स्ट लेक्चर। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं, देन विल स्टॉप, देन विल एंड दिस टॉपिक।